For the next category, we have our NGO from across the nation, and this has been hosted by Rajasthan chapter. And from this category, our first awardee is, let's move ahead to the first slide, is Sonu Sood Charity Foundation. It's quite a famous charity foundation, and we have a participant from their charity foundation, Ansika Sood from the foundation, who has already joined us. So, a charity foundation has been founded by Sonu Sood, who is an actor, and Sonu is working across uh, the nation in this pandemic for continuous 2 years. He is initiating this movement, which is encouraging people to join hands towards serving the humanity. So thank you, sir, for doing for our country, and thank you, Anshika, for joining us. Yeah, I know you have network issues, so that's completely fine. And please accept this award as a gift of appreciation from our side. Very soon, our logistic team will be sending a hamper and trophy to your place. Thank you for joining us. Let's move ahead to the next awardee. Then we have Narayan Seva Sansthan, which is a very famous NGO in India, who has joined us from Udaipur, Rajasthan. Narayan Seva has 49 branches across India, who is working on disabilities and providing proper um, physical, social, and economic rehabilitation to the needy people. And very famous video is there, which we will be watching in a while. So thank you, Narayan Seva Sansthan team, for sending your nomination, and you are in the list of our awardees. Thank you so much. Let's play the video and see their work, which they are doing in past continuous years. मेरा नाम मोहन है। मैं गली मोहल्ले में जाकर सब्जी बेचता हूँ। रोज के 200-300 रुपये कमा लेता हूँ। एक दिन अचानक मुझे थकान महसूस हुई तो मैं घर जल्दी चला गया और खाना खा के सो गया। तो रात को अचानक मुझे बुखार आ गया। तो 2 दिन बाद मैंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराया तो मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। तो मेरी घरवाली ने कहा कि आप जाकर दवाई ले आओ। तो मैं तो आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं 2 दिन से घर ही बैठा था। तो कहाँ से लाता दवाई? मेरे एक पड़ोसी है, उन्होंने मुझे कहा कि आप घबराओ मत, नारायण सेवा संस्थान वाले फ्री में कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया यार फिर मेरे भी कुछ हेल्प कराओ। तो उन्होंने मेरे को नारायण सेवा संस्थान के नंबर दिए। तो मैंने नारायण सेवा संस्थान वालों को फ़ोन किया कि सर मैं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। उनके जो कार्यकर्ता हैं नारायण सेवा संस्थान वालों के, वो मेरे घर आए और उन्होंने मुझे 14 दिन की पूरी कोरोना दवाइयों का किट दिया और 14 दिन तक, सबसे बड़ी बात उन्होंने 14 दिन तक मेरे घर पर उन्होंने मेरे तीनों जो परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए खाना भेजा। आज मैं ज़िंदा हूँ आपके सामने, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नारायण सेवा संस्थान की बदौलत है कि उन्होंने मुझे 14 दिन तक स्वादिष्ट खाना दिया, दवाइयाँ दी। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है और अब मैंने वापस अपना सब्जी का धंधा शुरू कर दिया है। Oh, this was amazing and itni heartwarming video. This was great to share. Thank you, Narayan Seva Sansthan team, for sharing. And from the Narayan Seva Sansthan, we have Miss Palak Agarwal today, who has joined us. So over to Miss Palak. Miss Palak, would you like to share some thoughts and interact with other Corona warriors who have joined us today? So over to Miss Palak. Please share some Yeah, thoughts and insights. yeah. Hi. Thank you. Thank you, Manas, for taking Naran Seva up the board.
It was really great to have myself here representing Narayan Seva Sansthan. Basically, when COVID turned up, we all know that situations got worse day by day. And as an NGO, it was our part to help the society in whichever way we could. We know there were several people who did not have food on their plates, or wife or someone's mother got infected due to COVID and she could not cook. These were the reasons we thought that maybe we should start Ghar Ghar Bhojan campaign, in which we could serve people every day with cooked meals. Therefore, till now, since past 1 or 2 months, we have been doing this campaign. Until now, we have served approx 25,000 plus families with food every day, cooked meal. Along with that, we know that maybe in village areas we cannot provide meals every day. So what we came up with was we provided a ration kit consisting of 15 kg flour, 5 kg rice, and everything, so that they could survive in those tough times, because many people are not able to earn their livelihood in this tenure. Additionally, we knew that since oxygen, which we used to take it very lightly, became a thing which could not be afforded or could not be brought to everyone's need. Therefore, we tried to provide our cylinders, whichever how much we have. We provided them all to the people of Udaipur so that we could help and save lives of all those who needed us. Additionally, we tried to Additionally, we tried to serve people with the ambulance service so that they could be taken to the hospitals well on time. And now, upcoming, we are planning to have some vaccinations with us, so that probably in the village areas we could vaccinate them and help the government to vaccinate the society in a more faster manner. At last, we would just say that being an NGO, we just did our bit. Step by step, we are trying to take things in a better mode, and stay happy, stay safe. That would be all. Thank you. Thank you, Palakji, for your insights and interacting with us. It is, and I really appreciate you for joining in your hectic schedule. Just a quick question: what was your catalyst? Because there has been a lot of challenges in past by our system, by people who are not following the social distancing, and still you were helping more than 25,000 families in this pandemic. So, what challenges, one or two challenges you faced, and आपने उनको overcome कैसे किया? Actually, rightly said, challenges बिल्कुल आए हैं. We all face some of the challenges. Major problem is कि हम लोग commute नहीं कर पा रहे थे. We were not able to travel due to lockdown. But thankfully हमें permission मिल गई from the authorities and our volunteers could travel. तो keep actually कुछ वॉलंटियर्स हमारे इन्फेक्ट हो गए थे, एंड देन द नेक्स्ट टाइम वी टुक केयर कि पहले उनका वैक्सीनेशन हो जाए, उनके बाद में वी वुड सेंड पीपल आउट. एंड इन द नेक्स्ट लॉट व्हाट वी डिड वाज वैक्सीनेशन सभी का करवाया, एंड आफ्टर दैट वी डिड सेंड आवर पीपल आउट एंड दे वर्कड रियली हार्ड डे एंड नाइट. So this was one challenge, but thankfully everyone is safe and sound right now. Wow, thank you so much, Palakji. The answer was very beautiful, and it reminds me of one slogan which my Dadaji used to say कि डर के आगे जीत है. और ये तो आपने Absolutely. सद्भावना के साथ इस कार्य को आप कर रही हैं. So we all are praying कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें, और we need more people like you in this universe. Thank you so much, Palakji, and please accept this award from our team, our Mehnaz software team, and very soon we will be sending out hampers and trophies to your shipping address. Thank you so much, Balaji. Thank you. Thank you. Pleasure being here. Thank you. Let's move ahead to the next awardee in NGO and social worker category. Next slide, please. So we have Sambhali Trust, who has a motto of self-esteem, unity, and independence. Congratulations to Sambhali Trust for contributing their bit in this pandemic. We really appreciate what you are doing. Let's move ahead to the next slide, please. So we do have Vagdara NGO who is working in this pandemic. Vagdara is a non-profit organization which is registered under Rajasthan, and this organization was actually founded in early 80s, and they are putting initially their efforts in a very small level, but they have been continuously doing since last decade and a half.
and they have impacted and benefited more than 25,000 tribal and needy, underprivileged people of our country, and to change the quality and standard of their living. So thank you, Team Vagdhara. Thank you so much for doing what you are doing. This is really supporting the environment, especially to the people who need us in this current time, and in boosting and initiating their capability to develop themselves. Thank you, Vagdhara team. From Vagdhara team, do we have someone to interact and accept this award? Or Yeah, yeah, ah, Arjun Bhai, myself yeah. Majid Khan, Hi, Majid. and yeah, hi. Hi. I hope, Hi Majid, प्लीज एक्सेप्ट दिस अवार्ड फ्रॉम yeah, मेहनाज टीम। और yeah, बहुत thank you. अच्छा लगा आपने आपका साइटेशन मैंने हम लोगों ने पढ़ा था। इट वाज रियली अमेजिंग एंड सो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, और आपने पिछले 10-15 सालों से क्या क्या किया है आप, और इसके Yeah, पीछे आपने किन किन चीजों को सबसे पहले काउंटर किया। प्लीज अपना एक्सपीरियंस सारे कोविड वॉरियर्स के साथ आप साझा करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैनाज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने आज इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। जिस तरह की कंडीशन अभी पूरे दुनिया में है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने वर्चुअल इवेंट काफ़ी अच्छे से इसको वेल प्लान किया और काफ़ी अच्छे से ये जा रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है जब इतने सारे जो वॉरियर्स हैं जो कि अभी कोविड पैंडेमिक में आगे आकर के काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो या डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हो या अदर्स दूसरे लोग हो, तो आप जैसी संस्थाएं आगे आकर के उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसा अर्जुन भाई आपने कहा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वागधारा साउथर्न राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में रतलाम, थानला और गुजरात में दाहोद डिस्ट्रिक्ट है। पूरा बॉर्डर एरिया है जहाँ पर राइट नाउ वी आर वर्किंग इन 1000 विलेजेस विद द कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी। वागधारा ने जब अपना काम शुरू किया था आज से 20 साल पहले, तो 15 किसानों का एक समूह था और उन्हीं के साथ एक शुरुआत की थी। खेती को लेकर के हमने काम करना शुरू किया था और 20 साल की यात्रा में आज हमारा जो फैलाव हुआ है, हमारी जो रीच है, वो 1000 गांवों तक हम पहुंचे हैं और 1 लाख फैमिलीज हैं हमारे ट्राइबल कम्युनिटी की, जिनके साथ हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं। और बेसिकली हम 3 थीम हमारी है जिन पे हम काम करते हैं। ट्रू चाइल्डहुड, जिसको हम सच्चा बचपन बोलते हैं, बच्चों के चारों राइट्स को इंश्योर करने के लिए हम काम करते हैं। ट्रू फार्मिंग, जिसमें हमारी एग्रीकल्चर और यहाँ की जो इंडिजीनियस वेराइटीज है उनको वापस से रिवाइव करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रू गवर्नेंस, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो हर स्कीम से जो भी वल्नरेबल फैमिलीज है उनको कैसे लिंकेजेस करवाया जा सके ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिले। इन तीनों थीम को ध्यान में रखते हुए वागधारा इन 1000 विलेजेस में काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना महामारी हमारे देश में आई आज से 1 साल पहले, तो आप भी वेल अवेयर होंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादा माइग्रेट हो जाते हैं। तो उस समय सडन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, तो एकदम से वो लोग वापस अपने घरों की तरफ आने लगे और काफ़ी मात्रा में वो लोग एक साथ घर घर पे वापस आए। तो उस समय उनके पास कोई रोजगार नहीं था, रिसोर्सेज की कमी थी। तो इमीडिएट क्या सपोर्ट हम उनको कर सकते थे, तो हमारे जो संस्था के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर जयेश जोशी, उन्होंने विद इन टीम हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम इमीडिएट क्या रिलीफ दें। तो जब जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे भी हम लोगों ने विजिट किया और उन परिवारों से हम मिले। तो उस समय हमने इमीडिएट इनको एक तो फूड राशन जो किट है वो हमने अवेलेबल कराया लगभग 30,000 फैमिलीज को, और 28,000 फैमिलीज को हमने, उस समय एग्रीकल्चर का सीजन था, खरीफ सीजन, तो उनको जो इनपुट्स होते हैं सीड्स के, अलग अलग वैरायटी के सीड्स है, वो हमने उनको अवेल कराया ताकि वो अपनी स्मॉल लैंड यहाँ पर उनके पास है, वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ उगा पाएँ और उससे अपने परिवार का भी न्यूट्रिशन सिक्योर कर पाएँ और उसके अपना लाइवलीहुड को भी इंश्योर कर पाएँ। लेकिन अभी जब सेकंड वेव आया है, तो ज़्यादातर ये देखने को मिला कि फर्स्ट वेव में जो है गाँव तक कोविड का इतना अफेक्ट नहीं था, गाँव से बहुत कम केसेस आए थे, अर्बन एरिया से ज़्यादातर केसेस थे। लेकिन अभी सेकंड वेव में गाँव तक कोविड पहुँच गया था, गाँव से ज़्यादातर केस आने लगे थे। तो चिंता यही थी, क्योंकि जो डेथ
के जो आंकड़े थे कि ऑक्सीजन की कमी से काफी सारे लोग मर रहे हैं और काफी लोग अपने अपनों को खो रहे हैं। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही थी, तो हमने यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हीं के साथ मिलकर के ज्वाइंट एफर्ट शुरू किया और सबसे पहले हमने ऑक्सीजन की सप्लाई हम कैसे करें, इवन सीएससी लेवल पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि ब्लॉक लेवल पर होते हैं, वहां तक हम कैसे रीच करें। तो हमारे जो अलग अलग पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जर्मनी में हैं, अमेरिका में हैं, उनसे हमने Right. कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने इमीडिएट हमें विद इन 2 और 3 डेज हमें रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए सपोर्ट करने के लिए वो राजी हुए। उनकी मदद से हम अभी तक यहाँ के सीएससी, पीएससी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेल करवा चुके हैं। Wow. उसके अलावा 2 ब्लॉक सीएससी है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बागीदोरा और छोटी सरवन, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट हम सेटअप करवा रहे हैं, अभी इन प्रोसेस है, विद इन 1 और 2 डेज वो शुरू हो जाएगा। एक Right. साथ ही हमने सोचा कि गांवों से जो केसेस आ रहे हैं तो क्यों ना हम एक एम्बुलेंस सर्विस भी हम शुरू करें, ताकि इमीडिएट जैसे केस आते हैं तो हम लोग भी उनकी मदद को तत्काल पहुंच जाएं। तो वागधारा संस्था ने कल ही उसका यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और यहाँ के जो नगर परिषद के जो महापौर वो आए और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और अब वो एम्बुलेंस सेवा लोगों की सेवा के लिए वो तैयार है। जब भी जिसको मदद हो, हमने इसका एक टोल फ्री नंबर जारी किया, उसको कॉल कर सकते हैं और उसकी मदद ले सकते हैं। Wow. तो Wow. और सेम लास्ट ईयर की तरह अभी फिर एग्रीकल्चर का सीजन है। यहाँ के जितने भी आदिवासी भाई हैं जो कि किसान हैं, एक छोटा हिस्सा उनके पास खेती का अपना होता है जमीन में, तो उनको हम वापस से खरीफ इनपुट जो अलग अलग वैरायटी के सीड्स है वो अवेल करा रहे हैं, ताकि वो अपने खेत में उनको उगा सके और उससे जो उपजेगा अपने फैमिली का फूड भी इंश्योर करेंगे, साथ ही साथ उसको बेच करके जो उनका इनकम आएगा तो उनसे उनका लाइवलीहुड भी इंश्योर होगा। और Okay. एक और मैं चीज जोड़ना चाहता हूँ, हम लास्ट ईयर भी हमने कोविड को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन हमने किया था। पूरा एक मोबिलिटी वैन हमने तैयार की थी, सभी 1000 विलेजेस में वो गई थी, लोगों को अवेयर किया था और इस साल भी वो वैन उसी तरह से जा रही है। और मेन फोकस इस बार हमारा वैक्सीनेशन पे है, क्योंकि लोगों में अलग अलग भ्रांतियां थी गाँव में कि अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे तो उसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा है, तो उसको कैसे दूर करें। उसके लिए हमारे फील्ड लेवल पे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, विलेज लेवल पे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, विलेज डेवलपमेंट चाइल्ड राइट कमेटी, महिलाओं का समूह जिसको हम सक्षम समूह बोलते हैं, जनजातीय स्वराज संगठन, हमारे क्लस्टर लेवल का फेडरेशन है, उन सब Right. के सपोर्ट से हम इस कैंपेन को इनिशिएट कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो आप सेफ हैं। राइट, आप बिल्कुल अगर सही किसी बात है कि तरीके वैक्सीनेशन ही इसका रास्ता है और या जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे और तभी देश सुरक्षित होगा। सो थैंक यू और सर फॉर यस वन लास्ट यस 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 प्लीज। वागधारा जो है पिछले 5 वर्षों से इस एरिया में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं, वागड़ रेडियो 90.8 एफएम। तो उसके तहत भी हम लोगों तक रीच करते हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है और लोगों को अवेयर करते हैं कोविड के कैसे अपने आप को सेफ रखें और गवर्नमेंट के जो भी आगे से ऑर्डर्स आते हैं तो उनको कैसे फॉलो करें। तो इस तरह से मिलकर के पूरा इंटीग्रेशन अप्रोच में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर के हम लोग और कम्युनिटी Right. बेस्ड जो हमारे इंस्टीट्यूशन है साथ में मिलकर के ट्राइबल कम्युनिटी के रिलीफ के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। राइट, ऑसम, थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर यू सो शेयरिंग मच। योर थॉट्स। और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट दिस या अवार्ड फ्रॉम आवर टीम एंड वी विल बी थैंक यू। सून shipping out the awards to your given address. Thank you sir, या thank you so much. थैंक यू सो मच अर्जुन जी, और थैंक यू सो मच मेहनाज सॉफ्टवेयर ग्रुप। थैंक यू। Thank you sir, thank you sir. Let's move ahead to the next slide please. The next awardee which we have in the list is Grameen Awam Samajik Vikas Sanstha, and this organization is working specifically in rural areas where they are supporting the mothers, the newborn kids, and the people who are not aware about policies of the government where they can take the benefit. We have Vishwajit Singh Rathod, who is doing amazing work at their end, and he has been supporting a lot of disabled kids in his local community and Gali Mohallas. So, hats off to you, Vishwajit. You are working as an individual, which is amazing. So that's why you're in the list here. So as we said, every bit is important in this time. Thank you, Vishwajit. Do we have you on the call so we can interact?
Okay. Yeah, hi Arjun. Hi Vishijit. Hi, how are you? I'm good, and how are you? I'm doing great. Yes sir, please share आप क्या कर रहे हैं और क्या आपको इंस्पायर करता है ये करने के लिए, and please keep it concise for a minute or two. That would be Uh, amazing. so it will be like a bit long. So I'll start from the start. The last year I joined the Praveen Datta Sansthan as a project manager over there. But जब मैंने join किया था तो purpose was different. I joined as a for the different profile for different work, but the pandemic when happened, तो हमें वो सारा जो हमारे प्रोजेक्ट थे उन सबको बंद करके उन सबको एक बार होल्ड पे रख के हमने पूरा अपना जो मैम ने जो हमारी फाउंडर है भारती सिंह चौहान पूरा कंसंट्रेशन जो हमने किया वो सिर्फ और सिर्फ पैंडेमिक और कोविड के ऊपर किया था, चाहे वो ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेडिकल सप्लाईज हो, फूड जो फूड मील्स होते हैं उनके ऊपर हमने पूरा वर्कआउट किया था। तो लास्ट ईयर से लेके अभी तक हम लोगों ने अराउंड 1,05,000 फैमिलीज को हमने कुक मील फूड हमने प्रोवाइड किया है। 30,000 फैमिलीज को हमने अक्रॉस राजस्थान, चाहे वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके रूरल एरियाज में जाके हमने वहाँ पे ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमें जो मेजर जो हमने जो फेस किया था चैलेंजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव वो था परमिशंस और कम्यूट। तो उसको लेके फिर हमने लोकल अथॉरिटी से हमने बात किया, उनको हमने पूरा बताया कि व्हाट वी वांट टू डू फॉर द सोसाइटी। तो हमें बहुत इजीली परमिशन वगैरह मिल गए थे और हमने लॉकडाउन जब खुल रहा था धीरे धीरे तो हमने खुद हमारी टीम के साथ में पूरा कम्यूट करके वहाँ वहाँ रूरल में जाके उनकी परेशानियों को समझा और प्रॉब्लम्स पे ना बात करके हमने सॉल्यूशंस पे बात की और हमने कई हद तक उनको चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो या उनकी जॉब को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो तो हमने उन सबके ऊपर भी वर्कआउट किया। इस साल जब सेकेंड वेव जब आया तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था लास्ट ईयर से। इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी सारी डेथ्स वगैरह हो रही थी एंड जब मुझे खुद कोविड हुआ तो मैंने खुद महसूस किया कि ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसके अंदर आप किस तरह से फील करते हैं, आपकी जो फैमिली होता है वो कैसे उनका क्या बिहेवियर होता है, वो किस तरह से इमोशनली आपसे इतना वो होता है कि आप बहुत टूट जाते हो एक जब आपको लगता है कि यार अब शायद कुछ होप नहीं है। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मुझे खुद ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। देन भारती मैम डिसाइडेड कि अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑल दीज एरियाज जहाँ पे हम लोग फूड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मेडिकल सप्लाई पे, तो शी वांटेड टू डू अबाउट दिस ऑक्सीजन थिंग। देन हमने हमारे पार्टनर्स जो भी पार्टनर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब उनसे बात किया मैम ने और इमीडिएटली मतलब विद इन कपल ऑफ डेज हमें सपोर्ट मिलना भी शुरू हो गया और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह हमें अच्छे Right. नंबर्स में हुए और हमने फिर घर घर जाके जो फैमिलीज आइसोलेटेड फैमिलीज हैं वो हमारे पास नहीं आ पा रही तो हमने खुद घर जाके उनको प्रोवाइड किया वो सब कुछ Great. और विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट एनी too much of documentation we provided all these machines to those families and we were happy to help them. Awesome. So thank you, Rathorji. It was amazing listening to you. And Thank you so much. please accept this as a gift of appreciation from our side. And the work you are doing cannot be calibrated with a small award. Please continue doing it. And it was pleasure talking to you. And thank you for coming in your hectic schedule. आपने वक्त निकाला हम लोगों से साझा करने के लिए. Thank you so much.